Hello everyone. Today we will study about the process of controlling. The controlling process has 5 steps. 5 steps हैं इसके. First is setting performance standards. Next is measurement of actual performance. Next, comparing actual performance with standards. Then analyzing the deviations. And finally, taking the corrective action. Now we will study each and every step in detail. Setting up of standards. Standards means targets or the yardsticks against which the actual performance is measured. The standards are the basis for comparing performance and hence must be achievable and should be set up keeping in mind the resources of the organization, and they must be numerical or in measurable terms. स्टैंडर्ड्स क्या होता है? स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हमें अचीव करने हैं, और ये हमने प्लानिंग के टाइम पे बनाए थे. ये वही ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप जो है, हम प्लानिंग से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को या स्टैंडर्ड्स को पिकअप करते हैं, उन्हें टेक करते हैं. ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये न्यूमेरिकल या मेजरेबल टर्म्स में होने चाहिए, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट स्टेप, measurement of performance. After setting up of standards, the performance of the employees is measured by evaluating the actual work done by the employees. When the performance can be measured numerically, then it is very convenient to measure the performance. While measuring the performance, the qualitative as well as quantitative aspects of the performance is kept in mind. इस स्टेप में हम एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने शो करी है, वी विल मेजर इट इन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की जो दो चीजें हैं हम उन्हें कंपेयर करेंगे. आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजमेंट compares the actual performance with the planned performance and the standards. This will reveal the deviation between the actual and the desired results. Then the manager tries to find out the extent of the deviation. If the deviation is minor, then it should be ignored. Otherwise, timely actions must be taken. इन दिस स्टेप हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स को मीट करा है कि नहीं करा, और अगर नहीं करा तो डेविएशन किस डायरेक्शन में है और कितनी है. द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन. अगर वो डेविएशन छोटी है, विद इन द लिमिट्स है कि चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, इट कैन बी इग्नोर्ड. बट अदरवाइज अगर वो डेविएशन acceptable limits के beyond है, then timely action is required. So the next step is analyzing the deviations. अब just previous step में deviations पता चली हैं, now we will analyze them. All the deviations need not to be brought to the notice of the top management. A range of deviations should be established, and only cases beyond this range should be brought to the knowledge of top level management. These deviations should be classified as ones which are to be attended urgently and the others which can be ignored or are not significant. अब हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं कि कौन सी डेविएशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेविएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या विद इन द लिमिट्स है या इंपॉर्टेंट एरिया में नहीं है, वी कैन इग्नोर दैट डेविएशन. बट जो डेविएशन इंपॉर्टेंट है उसको इमीडिएटली टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लाना है ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सके, ठीक कर सके उस डेविएशन को, रीजन फाइंड आउट करके. द टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन. देयर आर टू टेक्निक्स, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल and management by exception. So let us study them. Critical point control. It means keeping focus on some key areas, and if there is any deviation in these key areas, then it must be attended urgently. Key areas or KRAs are those which have impact on the whole organization. For example, if there is an increase in the production cost by rupees 5 per unit, and then there is an increase in the postal cost by rupees 20,
then more focus should be to find out the reasons for increase in the cost of production, as it will affect the profit of the whole organization and the future revenue of the organization, whereas the postal cost incurred does not have much impact on the organization or the profit of the organization. So in this method we focus on the key result areas, important areas पे फोकस करते हैं, और उन्हीं में जो डेविएशंस है, अगर उनमें कोई डेविएशंस है तो उनको देखते हैं हम। KRAs पे कोई इम्पैक्ट आया है क्या, की रिजल्ट एरियाज के डेविएशंस वी ट्राई टू फाइंड आउट, और जो इतने इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं है उनमें अगर डेविएशन है भी तो वी कैन जस्ट इग्नोर देम। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मीन्स द मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग may end up controlling nothing. The deviations which are beyond the specific range only should be handled by the managers, and minor deviations can be ignored. Manager should not waste his time and energy in finding solutions for minor deviations. Rather, he should concentrate on removing deviations of high degree. The objective is to facilitate the management's focus on really important and strategic tasks. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि जो डेविएशंस विद इन द लिमिट्स हैं दे आर ओके, वो एक्सेप्टेबल हैं, बट जो डेविएशन लिमिट्स के बियॉन्ड है उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगेन वो होल ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती हैं। माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड। इम्पॉर्टेंट एरियाज में एंड इम्पॉर्टेंट डिग्री की जो डेविएशंस है उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट हर चीज़ पे तो ध्यान नहीं दे सकती। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे काम है, कितने सारे एरियाज हैं, तो हर एक चीज़ पे अगर मैनेजमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो मैनेजमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इंपॉर्टेंट एरियाज छूट जाएंगे, जो इम्पैक्ट चीज़ें डाल रही हैं वो चीज़ें छूट जाएंगी। तो सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि मैनेजमेंट का फोकस इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरियाज पे रहे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालती हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज इट सेव्स टाइम। ऑफ कोर्स टाइम सेव होता है मैनेजमेंट का, बिकॉज इस केस में मैनेजमेंट जो की एरियाज है या जो मेजर इंपॉर्टेंट डेविएशंस है उन पे फोकस करके उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगी, तो इससे टाइम सेव होगा और इससे इट कॉन्सेंट्रेट्स executives efforts on major problems. They can focus on major problems and they can ignore the minor problems. बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं दैट कैन बी डेलीगेटेड, वो अपने जूनियर से या सबॉर्डिनेट से कराई जा सकती हैं। जो इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं वो मैनेजमेंट अपने हाथ में रखेगी और मैनेजमेंट सिर्फ उस पर फोकस करेगी। It increases the span of management and provides better opportunities for self-motivated personnel. जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो छोटे मोटे एरियाज पे खुद ही ध्यान दे सकते हैं, उनको खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन हैंडल देम। बट मैनेजमेंट के हाथ में की एरियाज या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे और मैनेजमेंट उन पे फोकस करेगी ताकि जो होल ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट उन चीज़ों का ना आए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब डेविएशंस पता चल गई, हमें पता चल गया कि हमें कौन से डेविएशंस पे फोकस करना है, अब उन डेविएशंस को रिमूव करना है या करेक्ट करना है। द फाइनल स्टेप इज टू टेक करेक्टिव एक्शन so that deviations can be removed. No corrective action is required when the deviations are within the acceptable limits. When the deviations are beyond the acceptable limits, especially in important areas, immediate managerial attention is required so that deviations do not occur again and standards are accomplished. करेक्टिव एक्शन लास्ट स्टेप में हम डेविएशंस को देखेंगे और उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि वो रिपीट ना हो और हम अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें जो हमने प्लानिंग के टाइम पे बनाए थे। जो डेविएशंस को रिमूव करके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है हमने। तो लास्ट स्टेप इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। आई होप आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।